Yes, sir. टाइम किस पे लेंगे जी? Seconds. Meters. ये जो स्लैश है that represents the unit. The time, the quantity है, we are measuring it in seconds, right? बेटा ये तीनों मार्कर खत्म हो गए. शाबाश. Independent quantity, dependent. Time depends on distance depends on the time. All right. Let's suppose किसी कार का एक ग्राफ बना इस तरह से. 2, 4, 6, 8 और ये है हमारे पास One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Now, if we just look at this, can we figure out what type of journey that object was covering? ये सारे लोग शायद तुमने एडमिट नहीं किया. ऑलराइट. अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट all right, I'm sure you people can hear me now. Yes, sir. Okay, let's suppose ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी मोशन हमने इस तरह से रिप्रेजेंट की. So if you just look at the values, numbers, can you figure out what type of journey that object has covered? Sir, repeat करिए. Distance कैसा कवर किया होगा इस ऑब्जेक्ट ने ड्यूरिंग द जर्नी? कोई भी ऑब्जेक्ट था मूविंग, it moved for 1.5 seconds and covered a distance of 6 meters. After this point, let's suppose this is A till B. What happened to that object? Sir, the object got stationary. जी तंजील, A से B तक उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सर ये नजर ही नहीं आ रहा था इतना. 4.5. 4.5. ये वाला डिस्टेंस कवर किया उसने. बेटा उससे तो डिस्टेंस Oh, sorry, sir. 6. 6 तक ही रहा है बेटा. रुक गया वो. और फिर ये क्या हुआ है? B to C क्या हुआ? Sir, deceleration. Deacceleration. शाहिद का ख्याल है deacceleration. और B से C तक क्या हुआ है? Deacceleration नहीं हुई है. This is wrong. जी. Did he go back? Yes. कौन है ये बच्चा? Mariam. Mariam. Good. The object, it moved back and reached to the initial point. Now, if we are considering this part, this is very, very tricky. अब तक हमने
डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस चीज को कभी भी डिस्कस नहीं किया। डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम जीरो नहीं होगा। क्या चीज जीरो होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। All right. What is distance? Tell me. क्या होता है डिस्टेंस? Area between 2 points. Space between 2 points. या region between 2 points. And what is displacement? Position of a Shortest point in distance. particular direction. Shortest distance, your distance traveled in a particular direction. ऐसे ही है ना? Yes. So, what do you think? The object has covered this much distance from 0 to A, and then at this point, A to B, no distance, and from B to C, object has moved backwards. So, is it a distance time graph or displacement time graph? Distance. The distance. I think distance time graph. देखो बेटा, सिंपल है, वेरी सिंपल। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। रिमेंबर, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से बी तक गए एंड फ्रॉम बी टू ए यू केम बैक, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0. शाबाश। मूविंग टू B from A and then from B to A coming back, displacement, let's suppose this is 5 meters. Let's suppose 5 meters. 5 meters towards right, 5 meters towards left. What is the result? 0. But in case of distance, 5 meters plus 5 meters, altogether 10 meters. 10 meters. Yes. This is the difference between the two. Distance में zero नहीं हुए, displacement में result zero आ सकता है if the object is coming back to the initial point, right? So this is displacement time graph. बेटा ये एक मिसकंसेप्शन है जो बच्चे अक्सर मिक्सअप कर देते हैं बिटवीन द टू। ऑलराइट, ये कॉमन मिस्टेक है। तो इस तरह का ग्राफ जिसमें डिस्टेंस जीरो आ जाए, दैट इज नॉट अ डिस्टेंस टाइम, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मैं इसी जर्नी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहूं, वो कैसे बनेगा? लेट्स सपोज द ऑब्जेक्ट मूव फॉर 1.5 second and covered a distance of 6 meters, then it remains stationary for next 4.5 seconds, and then again it covered 6 meters in 4 seconds. Distance time graph इस तरह से बनेगा इसका।
ओके सर मुझे एडमिट करते हैं। All right. This is the distance covered in 1.5 seconds, and then it remained constant for the next 4.5 till 6 यहाँ तक. Okay. अब क्या होगा? यहाँ से distance और displacement में difference आएगा. For the next 4 seconds में उसमें further 6 meters. ये यहाँ this is distance time graph. This is displacement time graph of the same journey. Can you see the difference? Displacement में if the direction was opposite तो फिर वो जीरो पे पहुंच जाएगा, whereas कोई भी डायरेक्शन हो डिस्टेंस में वो ऑनवर्ड्स ही मूव करता है, फॉरवर्ड प्लस ही होता है, ऐड ही होता है, बिकॉज दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट द डिफरेंस? बेटा जिसको नहीं समझ आ रही प्लीज टेल मी. क्लियर हो गया बेटा? So we have a slight difference in distance time and displacement. सर Time graph. जी बोले. सर सर अगर हम इन दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, इन दोनों का, जी, तो वो क्या चीज निकलेगी? आप बताइए क्या चीज निकलेगी? सर डिस्टेंस टाइम का तो स्पीड. All right. और वेलोसिटी इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम का डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या निकलेगा? सिंपल, इसकी स्पीड है. सर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या फिर निकलेगा? डिस्टेंस ओवर टाइम होती है ना स्पीड. जी सर. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. शाबाश. ऑलराइट बेटा. जी सर. उसमें स्पीड आएगी और इसमें वेलोसिटी आएगी. बेटा ये वो डिफरेंस है जो आपको एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए. हमारे अक्सर टीचर्स और स्टूडेंट्स इस चीज की एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है. और सर इन दोनों का जो ग्रेडियंट होगा वो एक्सेलरेशन होगी. जी बेटा, चेंज इन स्पीड. अब यहां तक तो ये बात सही है. इससे आगे हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं तो फिर हमारे पास ये यहां पर रुक जाता है. ये स्पीड से आगे नहीं चलता. वेयरएज ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये डिस्प्लेसमेंट स्पीड सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों स्टेजेस पे जाता है. ओके. इसलिए हम ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम सिर्फ डिस्टेंस एंड स्पीड निकालते हैं. रिमेंबर बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी aware of these two types of things, these two types of graphs. इसमें सिर्फ डिस्टेंस एंड स्पीड रिलेटेड होगा, चाहे आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालें या आप खाली इसको रीड करें
और इसके अंदर आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फर्दर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से फाइंड करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। मैं अब आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। वी आर नाउ गोइंग टू डील विद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ